हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स चैप्टर से चौका नंबर 7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन ए मेटल वायर इज स्ट्रेस्ड बाय ए लोड द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर रूट डेल्टा एल बाई एल, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ ए मेटल वायर इज L1 when the tension in it is T1 and L2 when the tension is T0 T2. The natural length of the wire is L1 plus L2 by 2 root L1 L2 L1 L2 minus L1 T2 minus L2 T1 upon T2 minus T1 L1 T2 plus L2 T1 upon T2 plus T1. Question number 3, a sphere of mass 20 kg is suspended by a metal wire of unstressed length 4 meter and diameter 1 mm. When in equilibrium there is a clear grip of 2 mm between the sphere and the floor. The sphere is gently pushed aside so that the wire makes an angle theta with the vertical and is released. Find the maximum value of theta so that the sphere does not rub the floor. Young's modulus of metal is 2.0 into 10 to the power 11. Option है cos inverse 0.75, cos inverse 0.625, cos inverse 0.804, cos inverse 0.375. Question number 4, a steel wire original length 1 meter and cross-sectional area 4 mm square is clamped at the two ends so that it lies horizontally and without tension. If the load of 2.16 kg is suspended from the middle point of the wire, what should be its vertical depression? Y of steel is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. G is 10 meter per second square, 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter. Now solution. When a metal wire is stressed by a load, the frictional change in its volume delta V by V is proportional to delta L by L का स्क्वायर अंडर रूट डेल्टा L by L, नन ऑफ दीज। एक वायर, सपोज एक वायर है, जब इसको हम स्ट्रेच किया जाता है तो लेंथ increases, volume radius decreases. वॉल्यूम होगा V is pi r square L, delta V by V is equal to 2 delta R by R plus delta L by L. Delta L by L is longitudinal strain. And delta R by R is lateral strain. पॉइजन्स रेशो होता है, पॉइजन्स रेशो
lateral strain upon longitudinal strain अगर पॉइजन्स रेशो E है तो लेटरल स्ट्रेन डेल्टा R बाई आर, क्योंकि ये R तो डेल्टा R बाई आर अपॉन डेल्टा L बाई एल, तो डेल्टा R बाई आर हो जाता है E डेल्टा L बाई एल। ये डेल्टा R बाई आर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर, अगर हम इसमें पुट कर दें तो डेल्टा V बाई वी होगा 2E डेल्टा L बाई एल प्लस डेल्टा L बाई एल, और डेल्टा L बाई एल 2E प्लस 1। जो पॉइजन्स रेशो है फॉर ए मटेरियल इज कांस्टेंट, hence 2E by L is constant. So delta V by V is directly proportional to delta L by L. Delta L by L, A is correct option. Question number 2. The length of a metal wire is L when the tension in it is T1 and L2 when tension is T2. The natural wire length of wire is L1 plus L2 by 2 root L1 L2, L1 T2 minus L2 T1, T2 minus T1, L1 T2 plus L2 T1 upon T2 plus T1. Suppose natural length is L, cross sectional area of wire is A, and Young's modulus of material of wire is Y। तो स्ट्रेन होता है फाइनल लेंथ जो स्ट्रेस्ड है माइनस नेचुरल लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ। और दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेस होती है टेंशन अपॉन एरिया अपॉन यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू टी बाई ए वाई। तो जो पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन L1 माइनस L बाई एल इज इक्वल टू T1 अपॉन ए वाई, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन है L2 माइनस L बाई एल स्ट्रेन इज इक्वल टू T2 अपॉन ए वाई, क्वेश्चन नंबर 2। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो L1 माइनस L अपॉन L2 माइनस L इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, और L1 T2 माइनस L T2 इज इक्वल टू L2 T1 माइनस L T1, और L1 T2 माइनस L2 T1 इज इक्वल टू L T2 माइनस L T1। L T2 माइनस T1, तो L की वैल्यू आ जाती है
L1 T2 minus L2 T1 by T2 minus T1. This C is correct option. Question number 3. A sphere of mass 20 kg is suspended by a metal wire of unstressed length 4 meter and diameter 1 mm. When in equilibrium there is a clear gap of 2 mm between the sphere and the floor. The sphere is gently pushed aside so that the wire makes an angle theta with the vertical and is released. Find the maximum value of theta so that the sphere does not rub the floor. Young's modulus of metal of wire is 2 into 10 to the power 11. Cos inverse 0.75, cos inverse 0.625, cos inverse 0.804, cos inverse 0.375. Mass of sphere is m is 20 kg, L is 4 meter and diameter तो area is जो diameter है D is 1 into 10 to the power minus 3 मीटर तो एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 D स्क्वायर और पाई बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर. इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर ये एक L लेंथ का वायर उस पे ए स्फीयर ये वायर and this is a floor. जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, तो टेंशन T1 in equilibrium position T1 is equal to mg or 20 is the ये गैप है, गैप बिटवीन द फ्लोर एंड 2 mm. 2 mm. टू इंटू 10 to the power minus 3 मीटर और L is 4 मीटर. अब इसको हमने एक थीटा फ्रॉम वर्टिकल दिस इज थीटा, तो ये जब यहाँ पर आता है दिस इज जस्ट टू टच इट फ्लोर. तो जब यहाँ इस पोजीशन पे ये स्फीयर आता है तो इस पर फोर्सेस एक्ट करती, इसका जो टेंशन होगा अगर यहाँ पर स्पीड v है तो टेंशन T2 इन दिस वायर T2 will be equal to mg plus centripetal force mg square by L. Delta T change in tension T2 minus T1 and T2 minus T1 is mg plus mv square by L minus mg mv square by L.
तो अगर हम हटा दें जब ये डिस्प्लेस्ड कंडीशन में होगा इसकी हाइट दिस विल बी, अगर ये O है, दिस इज A एंड दिस इज B, तो डिस्प्लेस कंडीशन में इसकी हाइट होगी L माइनस L कोस थीटा और L 1 माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर जो P होगा पोटेंशियल एनर्जी mgl 1 माइनस कोस थीटा। जब B पर आएगा तो यहाँ पर केवल काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। This mgl pe will equal to kinetic energy, so half mv square will be equal to mgl 1 minus cos theta, और mv square by L will be equal to 2 mg 1 minus cos theta. This mgl, this is delta t. Delta t is 2 mg 1 minus cos theta, और this is equation number 1। जो स्ट्रेन होगा जब ये दैट विल बी इक्वल टू दिस गैप 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डेल्टा एल। तो स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल विल बी इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू अपॉन यंग्स मॉडुलस, डेल्टा टी बाई ए इंटू यंग्स मॉडुलस। डेल्टा एल 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और L इज 4 मीटर, डेल्टा टी 2 mg 1 माइनस कोस थीटा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। pi by 4 into 10 to the power minus 6 and y is 2 into 10 to the power 11. Ten to the power minus 3 into pi by 4 10 to the power minus 6 into 2 into 10 to the power 11 is equal to 2 mg 1 माइनस कोस थीटा, और पाई बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 20 इंटू 10 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 2। 10 टू द पावर 2 ये क्रॉस हो गया, दिस कम्स पाई बाई 8 और 3.14 बाई 8।
ये this is 2. Four. This is 4. This will be 16. Sixteen. 3.14 16 1 16 0.196. Cos theta is equal to 1 minus 0.196 0.804. So theta is cos inverse 0.804. तो थीटा की वैल्यू है वो कोस इनवर्स 0.804. दिस सी इज करेक्ट ऑप्शन. Question number 4. A steel wire original length 1 meter and cross sectional area 4 mm square is clamped at the two ends so that it lies horizontally and without tension. If a load of 2.16 kg is suspended from the middle point of the wire, what should be its vertical depression? Y of steel is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. G is 10 meter per second square, 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter. Suppose this is 2L is equal to 1 meter or L is 0.5 meter. Cross sectional area 4 mm square, 4 into 10 to the power minus 6 meter square, and M is equal to 2.16 kg. एक वायर AB इसका मिडल पॉइंट C इज L. यहाँ पर हमने एक वेट mg. तो ये वायर कुछ ये C पॉइंट आ जाता है D पर. दिस इज D पॉइंट. तो यहाँ पर mg मास mg वेट सस्पेंडेड है. ये दिस सपोज दिस इज x. दिस एंगल इज थीटा and this is also theta. अगर टेंशन T है तो इसमें भी टेंशन T है. तो AD होगा, AD will be L square plus x square under root, and similarly this BD will be L square plus x square under root. T का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो T का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उनका सम जो है वो mg के इक्वल होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. तो 2t cos थीटा विल बी इक्वल टू mg. और इक्वेशन नंबर 1 cos थीटा इज इक्वल टू x बाई L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट. एक्स L कॉमन ले लिया, 1 प्लस L स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई L स्क्वायर अंडर रूट, और x बाई
एल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर की पावर माइनस हाफ कोस थीटा। जो बायनोमियल थ्योरम होती है 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो। दिस इज बायनोमियल थ्योरम। इसका एक्सपेंशन हमने बायनोमियल थ्योरम से कर दिया फॉर 2 digits। तो x बाई एल विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एक्स बाई एल माइनस हाफ एक्स क्यूब बाई एल क्यूब। एक्स इज वेरी लेस देन एल, हेंस वी लीव दिस। तो कोस थीटा विल बी इक्वल टू एक्स बाई एल। कोस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो 2t एक्स बाई एल इज इक्वल टू एम जी और t इज इक्वल टू एम जी एल बाई 2x। t की वैल्यू आ गई एम जी एल बाई 2x। अब जो स्ट्रेन x की वैल्यू हमारे पास आ गई है t बराबर हो गया हमारा t इज इक्वल टू एम जी एल बाई 2x। अब स्ट्रेन फाइनल लेंथ ए डी प्लस बी डी माइनस इनिशियल लेंथ ए बी अपॉन इनिशियल लेंथ ए बी, 2 एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस 2l बाई 2l। 2l कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 2l बाई 2l। 2l से डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1। इसको बायनोमियल थ्योरम से हमने एक्सपेंड कर दिया हाफ एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, बाकी छोड़ लीव कर दिए माइनस 1। तो स्ट्रेन आ जाता है हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर स्ट्रेन। Strain will be equal to stress upon Young's modulus, x square upon 2l square will be equal to stress है हमारा t by area of the cross section, t by ay। t की वैल्यू है mgl by 2x by ay और mgl बाई 2x ay एक्स स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर, 2 से 2 क्रॉस हो गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब एम जी बाई ए वाई। बोथ साइड हमने क्यूब रूट ले दिया तो एल एम जी बाई ए वाई का क्यूब रूट। वैल्यूज पुट कर दें, L इज 0.5,
M is 2.16, G is 10, and cross-sectional area 4 into 10 to the power minus 6, 4 into 10 to the power minus 6 into 2 into 10 to the power 11, इसका क्यूब रूट 0.5 21.6 upon 8 into 10 to the power 5 का क्यूब रूट और 0.5 216 by 8 into 10 to the power 6 का क्यूब रूट 0.5 27 by 10 का और 6 का क्यूब रूट। तो x की वैल्यू आ जाती है 0.5 इंटू 3 बाई 10 टू द पावर 2 मीटर और 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर और 1.5 सेंटीमीटर। तो जो डिप्रेशन होगा वो होगा 1.5 सेंटीमीटर। दिस सी इज़ करेक्ट ऑप्शन।